जुगो जुग अटल चवर तखत दे मालिक गुरता गद्दी ते विराजमान धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर सतवें गुरु नानक सादगी दे मुजस्मे धन गुरु हर राय साहिब सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र आगमन पुरब आप जी बड़ी शरदा नाल मना रहे हो। सब तो पहले सतगुरु जी दे आगमन पुरब दी बधाई गुरु महाराज दी फतेह राही कबूल पावो। गज के फतेह गजाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं हथ जोड़ के बेनती करांगा कि संगत वालों बड़ा शोर आ रहा है। कथा ते कीर्तन विच बड़ा फर्क होंदा है। कीर्तन दे विच साज वजदे ने, गाउण वाले काफ़ी होंदे ने। जे कोई माड़ी मोटी गल करे आवाज़ दब जाती है, पर कथा लई बहुत एकांत चाहिदा है। इस करके मेरी हथ जोड़ के बेनती है, गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह के सत्कार नूं मुख रखदियां महाराज हाजिर नाजर ने चुप दा दान बख्शो। आप जी 5 कुछ मिनट रल मिल के असी सारे सतनाम वाहिगुरु दा जाप करदे हां तां जो एक माहौल बन जाए, फिर असी गुरु दीयां गल्लां करांगे। सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। 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 एक बार फिर मन की बिरती नूं एकागर करो ते गुरु फतेह दी सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, असी सतवें गुरु नानक सादगी दे मुजस्मे धन गुरु हर राय साहिब सच्चे पातशाह जी का पावन आगमन पुरब मना रहे हाँ। सहज पाठ की समाप्ति तो उपरंत गुरु के प्यारे कीर्तनियां ने आप जी नूं रब्बी बाणी दे कीर्तन नाल निहाल कीता। उपरंत आओ हुण कुछ कुछ समा सतगुरु जी दे जीवन उत्ते पंछी झात मारन लई बख्शिश होया है। गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह मीरी पीरी दे मालक सतगुरु जी दे गृह विखे
ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 5 ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਨੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤਿਆਗਮਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਗਮਨ
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੋਵੇ ਸ਼ਰਵਣ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੱਕੀਏ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀਓ, ਧੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧ ਰਾਖ ਲੈ ਹਰ ਜੀਓ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ? ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਛੋਡੂ ਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾਮ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੈ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਠੰਡੀ ਤਾਤੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਈ। ਠੰਡੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਤਾਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਗਨ ਭੇਟ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਫਨਾ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੱਜਾਂ ਇੱਕ ਦੱਬੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਏ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸੱਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਭੀਫਿਰ ਹੱਸਣ ਪਾਏ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਲਾ ਨਵੇੜਾ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਉੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਸੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅਗਨ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਚਿਕਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਿਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਘੁਮਿਆਰ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁਣਿਆ, ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਪਕਾਣਾ ਸੀ, ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ? ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੈ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਕੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਬੜੀ, ਝੜ ਝੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਜੀ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੇਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ। ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ
ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਕਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕਫਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਜਾਮਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੱਤਵਾਂ ਜਾਮਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਤ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਲੱਤ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸੱਕਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਹੈ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਪਏ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਤ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਪੈ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਜਾਨੋ ਨਾਹੀ ਸੋ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ ਪੈ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਜਾਨੋ ਨਾਹੀ ਸੋ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰਾ। तो पहली गल असी की समझनी है महाराज के जीवन विचों, बाणी का भै, बाणी का अदब, बाणी का सत्कार करना है। दूजी गल, अज बड़े लोग ऐसे ने जिहड़े सानू नितनेम तो तोड़ते पे ने। इक्को गल कहणगे जी थोड़ी बाणी पढ़ लो, विचार के पढ़ो, नितनेम रैपीटिशन है, तोता रटनी है। गुरु हरिराय साहिब सच्चे पातशाह नूं सिख संगत ने बेनती की, महाराज सवेरे नितनेम करते हाँ, बाणी पढ़ते हाँ, पर सानू अर्थां दी समझ नहीं कि यह बाणी बड़ी प्रवान है। गुरु हरिराय साहिब महाराज कहन लगे समा आन ते दसांगे। कहंदे एक दिन सवेरे सवेरे मीह पिया, मीह पैण तो बाद जदों दिन चढ़िया, सतगुरु कहंदे आओ शिकार खेलन चलीए। शिकार खेलन गए ते रस्ते दे विच की तकिया, कुछ ठीकरियां पईयां सन, ठीकरियां दे विचों घिओ सिमदा पिया सी। महाराज कहंदे ना ठीकरियां वल वेखो, इन्हां ने कदी घिओ दी संगत कीती सी, भावें घिओ पा के कढ भी लिया, पर अजे भी वेखो थिंदियाई है। सतगुरु कहंदे भावें तुहानूं बाणी दे अर्थ नहीं समझ आउंदे, बाणी दे अर्थां तो तुसीं जाणू नहीं, पर बाणी जरूर पढ़ो, बाणी पढ़े दा लाहा है। मैं एक बेनती तुहानूं करां, सत्कारयोग मातावां बैठियां ने, भैणां बैठियां ने, मां अपने बच्चे नूं दुध पिलाउंदी है। वैसे मैं थोड़े दिन पहले एक उर्दू दे विद्वान नूं पढ़ रहा सी, उन्हें बड़ी कमाल दी गल लिखी। कहंदा अज दा जिहड़ा बच्चा है ना, आदि जिहड़ी जनरेशन है, अज साडे बच्चियां विचों वड्डियां दा किरदार नज़र नहीं आउंदा। क्यों नहीं आउंदा? इहदे दो कारण ने। वो फारसी विच लिखदा है, कहंदा तिफिल, तिफिल बच्चे नूं कहंदे ने, छोटे बच्चे नूं।
तिफिल से कहा बू आए माँ बाप के किरदार की। बू का मतलब खुशबू। कहता अज दे बच्चे दी विचों माँ प्यो के किरदार की खुशबू क्यों नहीं आती। तिफिल से कहा बू आए माँ बाप के किरदार की, दूध है डिब्बे का। आता माँ अपना दूध पिला के भी राजी नहीं। दूध है डिब्बे का, तालीम है सरकार की। अज असी उन्हां स्कूलों में भेजते हैं जिथे गुरमत का माहौल नहीं। कितों बच्चों विच माँ प्यो का विरसा किरदार आएगा। तो खैर माँ बच्चे नूं दूध पिलाउंदी है। कदी माँ ने कंडीशन रखी है कि बच्चिया तेनू दूध तां देंगी जे तू पहले दूध के बारे मैनू सब कुछ दस। दूध विच कितना मिनरल है, कितना आयरन है, किहड़े किहड़े विटामिन ने। बच्चे नूं तां कख नहीं पता। छोटे बच्चे नूं की पता दूध बारे? कुछ भी नहीं पता। बस माँ का दूध पींदा है ते ताकत मिल जाती। गुरु प्यारी साध संगत, गुरु हरराय साहिब महाराज ने दसिया कि जे तुहानू अर्थां की समझ नहीं तां भी कोई गल नहीं, बाणी नूं पढ़ो। ये बाणी पढ़ी तुहाडे लई लाहेवंद होएगी। जिस तरह भांडे विचों घिओ पा के कढ लो, भांडे भी थंदाई रह जाती है। जिस तरह मां बच्चे नूं दुध देंदी है, बच्चे नूं दुध बारे कख नहीं पता, पर दुध पी के कितनी ताकत मिलती है। अज सानू बड़े लोग तोड़न लई कहंदे नितनेम ना करो जी, रैपीटिशन है, तोता रटनी है, अर्थां तो जानू हो। ठीक है, अर्थां तो जानू होना है, पर नितनेम नहीं छड्डना। उन्हां नूं पुछो जिहड़े सानू कहंदे ने रैपीटिशन है, उन्हां नूं कहो तू सवास लैंदा है, सांस लैने रैपीटिशन नहीं है। ते मैं आप जी दे चरनां विच एक होर बेनती करां, गुरु प्यारी साध संगत। मस्कीन साहब एक गल कहंदे सन, कहानी। कहानी का मतलब कह रहा नहीं है, पर सिक्ख्या लै लो। किसी गुरमुख प्यारियां ने गल सुनाई, असी साखी वाल नहीं जाना, सिक्ख्या वाल जाना है। कहंदे किसी देश अंदर बड़ा मीह पैंदा सी। मीह पैण करके चंगियां फसलां होंदियां सन। फसलां होण करके चार पैसे चंगे आउंदे सन। अक्सर बंदे कोल ज्यों ज्यों धन वधदा है ना, बंदा रब नूं भुल जांदा है। ताई बाणी विच लिखिਆ दुख दारू सुख रोग पिया। वो सारा ही देश रब नूं भुल गया। अखीर देवतिया ने मीटिंग बुला ली। कहंदे कमाल हो गया, ज्यों ज्यों इस मुल्क के अंदर पैसा वधे सानू ही भुल गए ले। कहंदे असीं इस तरह करदे हां, 12 साल मीह नहीं पाउंदे, ना तां 12 साल मीह पेगा, ना फसलां होणगियां, भुख मारी वध जाएगी ते लोग फिर सानू याद करनगे। अखीर देवतियां दी मीटिंग हो गई। सारे इकट्ठे होके ना इंद्र कोल चले गए, क्योंकि एक मनोत है कि इंद्र मीह पाउंदा है। महाराज ने वैसे बाणी विच लिखिਆ पै विच इंद्र फिरै सिर भार, क्या उठ उठ देखो बपड़े इस मेघे हथ किछ नाहे, जिन ए मेघ पठाया तिस राखो मन माहे। वो इंद्र कोल चले गए, कहन लगे देवतियां दी मीटिंग हुई है, 12 साल मीह नहीं पाउणा। अगों इंद्र देवता कहन लगा देखो मीह तां मैं नहीं पावांगा, पर मेरे लिए एक बड़ी वड्डी समस्या है कि याद रखना कि 12 महीने शुरू कदों होए, 12 साल मुक्कणगे कदों। तुसीं इस तरह करो, जिहड़े शिवजी जी हन ना, वो नितनेम वजों रोज ना शंख वजाउंदे ने। उन्हां दा रोज दा नित है सवेरे शंख वजाना। तुसीं उन्हां नूं जाके कह दो कि 12 साल शंख ना वजा, 12 साल बाद जाके शंख वजाई। ते जदों शिवजी जी शंख वजाउणगे ना, शंख दी आवाज सुन के मैं मीह पावांगा। सारे देवते शिवजी जी कोल चले गए, जाके बेनती की भी 12 साल तुसीं शंख नहीं बजाना। कहने लगे ठीक है। 6 महीने लंघ गए, शिवजी जी ने शंख नहीं बजाया, ना तो शंख वजया ना मीह पिया। कहते 6 महीने बाद शिवजी जी ते पार्वती मात लोक ते आए। बड़ी गर्मी पै रही सी ते कोई बजुर्ग बेचारा खेतां विच ना हल वाह रहा सी ते पार्वती जी नेड़े जाके कहंदी ओ बापू देवतियां दी मीटिंग होई है,
12 साल मीह नहीं पैना, 6 महीने लंघ गए ने, अजे 11.5 साल पे ने मीह नहीं पैना, तू हल क्यों वाउंदा पिया? कोई फायदा नहीं। अगो बापू कहन लगा मीह पवे ना पवे वखरी गल है, मैं अपना कर्म करना हल वाउण दा। दूजी गल, जे मैं तुहाडी गल वड्डी करके 11.5 साल अपना हल वाण वाला नेम छड्ड दियां ते मैनू तो 11.5 साल बाद भुल ही जाना है कि हल वाईदा किस तरह। इस करके मैं अपना नेम नहीं छड्डना। पार्वती जी अगों शिवजी जी नूं कहन लगे कमाल दी गल कह गया है कि जे मैं अपना नेम छड्ड दिता 11.5 साल बाद भुल ही जाएगा कि हल वाईदा किस तरह। कहंदे तुसी भी तां नेम वजों शंख वजांदे हो, जे तुसी 12 साल शंख ना वजाया ते 12 साल बाद तुहानू भी तां भुल जाएगा भी शंख वजाईदा किस तरह। 6 महीने लंघ गए ने, किते भुल तां नहीं गए शंख वजाना? माड़ा जा वजा के तां वेखो, किते भुल तां नहीं गए? कहंदे शिव जी ने शंख पूरिया, उतों इंद्र ने सोचा भी शायद 12 साल पूरे हो गए, इंद्र ने मीह पा दिता। बापू कहंदा तुसी कहंदे 11.5 साल मीह नहीं पैना, यह तां मीह पै गया। पार्वती जी कहंदे बापू अज तेरे नेम ने 11.5 सालां दा काल कट दिता है, ते मैं गुरु दी हजूरी विच कह रहा, गुरु हर राय साहब जी दी असीस सदका, जिस गुरसिख दी जिंदगी विच नितनेम है महाराज 84 दा काल कट देंदे ने। सिक्ख्या लैके जानी है गुरु हर राय साहब जी दे जीवन विचों। महाराज कहंदे भावें तुहानूं अर्थां दी समझ नहीं, पर बाणी पढ़नी छड्डनी नहीं। जिस तरह को घड़े विच मटके विच घिओ पा के कढ लैंदे हां, हिंदियाई फिर भी रह जाती है। तो पहला पक्ष असीं समझना है बाणी दा सत्कार। जिन पै अदब ना बाणी धारा, जानो नाही सो सिख हमारा। गुरु प्यारी साध संगत, दूजी गल बाणी दा अभ्यास नहीं छड्डना, भावें अर्थां दी समझ है कि नहीं है। हुण अगे चलांगे। गुरु हर राय साहिब सच्चे पातशाह ने किरतपुर साहब की पावन धरती ते बड़े परोपकार किए। उनका एक कारण भी सी। कहते जदों बाल अवस्था सी, अपने पितामा भाव अपने दादा मीरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह नाल एक दिन सैर कर रहे सन। महाराज जी का मुबारक चोला एक फुल नाल टकराया, फुल टुट गया। सच जानना गुरु प्यारी साध संगत, जदों फुल टुटदा है ना, फुल भी एक गल कहंदा है। तुसीं जाके तोड़दे हो ना फुल, ते फुल दे अंदरों आवाज आउंदी, आवाज। भाई वीर सिंह ने लिखी है ना, कहता डाली नालों तोड़ ना सानू, असी हट महकदी लाई। लक गाक जे लंघन ऐथों खाली एक ना जाई। फुल डाली नाल लग्या है, जेड़ा भी उत्थों लंघदा उन्हें खुशबू मिलती है। लखा गाक लंघ जान खुशबू मिलती है, पर जदों डाली नालों फुल नूं कोई तोड़ देंदा है, गुरु प्यारी साध संगत जिहड़ा तोड़ के लै जांदा है ना, उनदे कोल भी थोड़े चिर दा परोना हुंदा है। बाद विच तां डाली तो टुट के फुल दा रूप रंग नस जांदा है। डाली नालों तोड़ ना सानू, असी हट महकदी लाई। लख गाक जी आक सुंगन खाली एक ना जाई। जे तू तोड़ के लै जासे तेरा जोगा रह जासा, ओ भी पलक झपकदा मेला रूप रंग नस जाए। तो गुरु प्यारी साध संगत, मैं बेनती कर रहा सी आप जी दे चरनां विच, जदों चोले नाल फुल टुटिया ते गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने एक गल कही। फुल क्यों टुटिया? अगर टुट गया ना, याद रखना महाराज कहंदी जे चोले वड्डे पाने ने ते दामन संकोच के चलना है, दामन संकोच के। और वेखो कैसी प्रेरणा लई गुरु हर राय साहिब सच्चे पातशाह ने। उन्हां दा जीवन काल वेखो, 2200 घुड़सवार महाराज ने रखे। 2200
पर कदी कोई जंग युद्ध नहीं किया। दूजी गल, महाराज शिकार खेलन जाते सन, अज तक महाराज ने किसी भी जानवर नूं मारिया नहीं। हाँ, एक साखी आउंदी है कि एक दिन महाराज जा रहे सन, एक सप नूं कीड़ियां चढ़ियां सन, कीड़ियां सप नूं खा रही सन, ते महाराज ने तीर चला के ना सप नूं मारिया। सिख संगत ने कहा, महाराज की गल, अज सप नूं मार दिता? महाराज कहते, मारिया नहीं, अज भी सप नूं तारिया है। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। महाराज कहते सप नूं मारिया नहीं, सप नूं तारिया है। महाराज समझ नहीं आई। धन गुरु हर राय साई सच्चे पातशाह कहन लगे, ये पिछले जन्म दे विच ना पखंडी साध सी, ते जिन्नियां कीड़ियां सन चिमड़ियां ने इहदे चेले सन। देखो महाराज ने जिते गुरु की सिफत की है बाणी अंदर, असी पढ़ते हैं, ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारै। जिते असी पढ़ते हैं, धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का यह सुआओ जन के संग चित आवे नाओ, आप मुकत मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। उत्थे महाराज ने ताड़ना भी की है, सुचेत भी किया, कहते काचे गुर ते मुक्त ना हो, काचे गुर ते मुक्त ना हो। महाराज कहते अज सप नूं मारिया नहीं, सप नूं तारिया है। ये पिछले जन्म दे विच पखंडी साध सी, ये जिन्नियां कीड़ियां नूं चिमड़ियां ने इहदे चेले सन, ते ना आप मुक्त होया ते ना चेलियां नूं मुक्त कर सके। मैं जिहड़ी बेनती करदा पिया सी कि महाराज फिर सारी जिंदगी ना दामन संकोच के चले, 2200 घुड़सवार रखे, एक भी जंग नहीं की, एक भी जंग नहीं की। फिर महाराज ने किरतपुर साहब की धरती ते बड़ा वड्डा दवाखाना खोलिया, क्योंकि तन ते जदों रोग आंदा ना, दोनों काम करने ने, दवा भी दुआ भी। किसी विद्वान ने कहा, जो काम दवा से नहीं होता वो काम दुआ से होता है, जब मुर्शिद कामल मिलता है तो मेल खुदा से होता है। महाराज बाणी विच भी लिखे, वैदा संदा संग इकट्ठा होया, औखद आए रास विच आप खलोया। जब गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह नूं शीतला ने घेरिया सी ना, महाराज ने इलाज भी कराया ते अरदास भी की। तुहानूं पता होवे अरदास वाला शब्द किहड़ा सी? एक शब्द तुसीं पढ़दे हो दुख भंजनी साहब दे विच, हर जियो तू सुख संपत रास राख लियो भाई मेरे को। मैं एक दिन सर्च कर रहा सी, तुहाडे फोन दे अंदर तुसीं चैक करना, जिहड़ा भाई शब्द का अर्थ की कीता है। इंग्लिश दी ऐप वेखो, भाई का अर्थ ते स्मॉल चाइल्ड किया होया है। क्यों? याद रखना, गुरु ग्रंथ साहिब सब दे सांझे ने। ये तो सिखां नूं अहंकार मार गया कि गुरु ग्रंथ साहिब साडा है, ते दूजे बेचारे नूं अज्ञानता मार गई, कहते गुरु ग्रंथ साहिब तुहाडा है। सिखां नूं अहंकार मार गया, गुरु ग्रंथ साहिब साडा है, दूजियां नूं अज्ञानता मार गई, कहते गुरु ग्रंथ साहिब तुहाडा है। वो ना साडा है ना तुहाडा है, बापू सारियां दा सांझा है। शब्द गायन होया ना अखीर विच, जगत जलंदा रख ले अपनी किरपा धार। खाली सिखां दी अरदास नहीं कीती गई, पूरे यूनीवर्स दी अरदास है। गुरु अर्जन देव महाराज ने तां कि सभे जी संभाल अपनी मेहर कर। तुसीं सोदर दा पाठ करदे हो, महाराज भई प्रापत मानुख दे होरीआ। जे सिखां दे गुरु होंदे ते पहली के सिख दे होरीआ, चैनी दे होरीआ, बोधी दे होरीआ, यहूदी दे होरीआ, नहीं, मानुख दे होरीआ, मनुखता दे रैबर ने। असी जान नहीं सके, असी समझ नहीं सके। सिखां नूं अहंकार मार गया गुरु ग्रंथ साहिब साडा, दूजियां नूं अज्ञानता मार गई गुरु ग्रंथ साहिब तुहाडा। सब दा सांझा। एक मैं नाल बेनती करदा, दो चीज़ां होंदियां ने, एक होंदा
उपदेश, एक होंदा हुक्म। उपदेश ते हुक्म दे विच फर्क है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का उपदेश सारिਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ है। खत्री ब्राह्मण शूद वैश्य उपदेश चौ वर्णा को ਸਾਂਝਾ। पर इसनूं गुरु मनन का हुक्म केवल सिखां नूं है। ज्ञानी ज्ञान सिंह ने सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। में जिहड़ी गल करन लगा सी ना, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बेअंत बोलियां ने, क्योंकि सब दे सांझे नहीं। ये जिहड़ा भाई शब्द है ना, हरियाणवी बोली दा है। तुसी दिल्ली नजफगढ़ तुहाडे नेड़े है, नजफगढ़ बहादुरगढ़ तो अगे निकलो, तुसी जिन्ने जाट लोग ने ना जिहड़े खड़ी हरियाणवी बोलते हैं, छोटे बच्चे नूं भाई कहते हैं। जिस तरह असीं गल करांगे ना, बच्चे नूं संभालना, अरे भाई को संभालियो। देखो जाके मैं विचने इस एरिया च काफी बहादुरगढ़ का एरिया, रोहतक का एरिया, इतने छोटे बच्चे नूं भाई कहते हैं, अरे भाई को संभालियो। थोड़े दिन पहले मैं विचार रहा सी किते सिकलीगर लोकां दे विच बैठा सी। मैं एक मिनट विचों लैन लगा तुहाडा। सिकलीगर लोकां दे विच ते उत्थे ना एक लोहे दा ड्रम पिया सी पुराना। वो सिकलीगर वीर ने विच सिर पाया, घुमा के सिर बाहर कड्डिया ते कहंदा, बाबा जी इसमें मोर्चे लग रहे हैं। मैं क्या, एक तो सुनिया भी सी दिल्ली बॉर्डर ते मोर्चा लाया किसाना ने, फलाना मोर्चा, ड्रम दे विच किहड़ा मोर्चा लग गया है। कहते जब लोहे को जंग लग जाता है, जंग लगने से जो सुराख होती हैं, इसे मोर्चा कहते हैं। मैं क्या फिर तुहाडी बोली ना महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब दर्ज की है। गुरु अमरदास महाराज कहते ए मन आरसी को गुरमुख देखे, मोर्चा ना लागे जा होमे सुख है। उत्थे महाराज ने इशारा किया, वो सिकलीगर लोहे नूं जंग लग जाए, जिहड़ियां मोरियां होंदियां इन्हां नूं मोर्चा कहंदे ने। ते महाराज कहंदे अंदर फिर विषय विकार जंग ला के मोरियां कर रहे, जिन्हों क्या गुर दिखलाई मोरी। सारियां बोलियां ने, पर अफसोस की गल असी अज इसनूं रुमालियां तक सीमित कर दिता है। मैं सवेरे भी दीवान विच बेनती की सी, मैं कि डॉक्टर नूं अज तक किसी ने नहीं कहा डॉक्टर साहब जिन्ने मर्जी पैसे ले लो, जिन्ने मर्जी पैसे ले लो, साडे हिस्से की दवाई भी तुसी खाओ। क्या नहीं, इत्थे कहंदे भेटां दी परवाह ना करना, पर असी 5 पौड़ियां तो बाद अंदर नहीं आना। चलो अज मैं तुहानूं 2 गल्लां कह दिंदा, तुसी अपने अंदर वेखना भी सानू पता कि नहीं पता। तुसी जे सचमुच गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करते हो ना, आ 2 गल्लां नोट करके जाना। गुरु ग्रंथ साहिब जी की जिथों आरंभता होंदी, जिहड़ा पहला अंग है जिथों बाणी शुरू है, अज महाराज के स्वरूप विचों दर्शन करना, ते भावें घर जाके सैंचियां विचों जिथों जपजी साहब की बाणी आरंभ है ना, ऊपर महाराज ने कॉलम पाया है जिथे अंग नंबर लिखा जाता है, वो कॉलम महाराज ने खाली छड्डिया। क्यों छड्डिया देखना जाके। अज ध्यान नहीं किया ना, अज तक आज ध्यान करना। दूजी गल, महाराज ने जिहड़ी बाणी है सज्जे अंग तो लिखनी शुरू की है, खब्बा अंग खाली छड्डे। क्यों? जाके विचारना। तो मैं जिहड़ी बेनती कर रहा, राख लियो भाई मेरे को प्रभ आगे, अरदास है, पर नाल शीतला का इलाज किया। दवा भी ते दुआ भी, गुरु घर भी दोनों ने। जो गुरु हर राय साहिब सच्चे पातशाह ने दवाखाना खोलिया। जो एक समा बनया, औरंगजेब नूं लगदा सी कि मेरे पिता की नेड़ता दारा शको मेरे वड्डे भरा नाल ज्यादा है, किथे कल नूं दारा शको नूं गद्दी ना मिल जाए। दारा शको ते पुला दे विच शेर दी मुछ दा वाल पा के दारा शको नूं खवा दिता। दारा शको जदों कित्थों ठीक ना होया, ते फिर उदों गुरु हर राय साहिब जी दे दवाखाने विचों, क्योंकि ते दवा भी है ते गुरु दी दुआ भी है, दारा शको ठीक होया। तो समा जो बख्शिया होया सी हो चुका है, मैं समय की उलंघना नहीं करांगा।
क्योंकि स्टेज ते किसी का समा खाना भी हक पराया नानका, उस सुअर गाए गुर पीर हामा तां भरे जा मुरदार ना खाए। समा भी नहीं किसी का खाना चाहिए, समय ते पाबंद रहना चाहिए। मैं भावें लेट लग्या कोई गल नहीं, पर मैं पहले समाप्ति कर दियागा, ठीक है। तो मैं जी दो कु पक्ष तुहाडे सामने मेन रखे ले कि बाणी दा अदब, जिन पै अदब ना बाणी धारा, जानो नाही सो सिख हमारा। दूजा, भावें अर्थां दी समझ नहीं पर बाणी जरूर पढ़ो। जिस तरह मां बच्चे नूं दुध देंदी है, बच्चे नूं दुध बारे कुछ नहीं पता, पींदा है ताकत मिलती है। अगले समय लिए अति सत्कारयोग भाई साहब भाई बलविंदर सिंह जी रंगीला चंडीगढ़ वाले आप जी नूं रब्बी बाणी दे कीर्तन नाल, इतिहास नाल, साखियां नाल जोड़नगे। उन्हां तो बाद भाई साहब भाई चमनजीत सिंह जी लाल वो भी आप जी नूं रब्बी बाणी दे कीर्तन नाल जोड़नगे। पहली बार इस स्थान दे दर्शन करन दा सुभाग मिलिया। जीके पार्ट 2 गुरु घर बड़ी बार हाज़री भरी है इस स्थान ते पहली बार, क्योंकि लॉन्ग टाइम तो दास विदेशों में रहिंदा है। ऐतकी कोविड करके दास इंडिया सी, ये सुभाग बने हैं। सतगुरु तरस करन, किरपा करन, बख्शिश करन, रहमत करन। आप सारियां दा धन्नवाद ते सारियां वल्लों धन्नवाद गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पिता दा। तेरी पना में आकर सभी दुख दूर होते हैं, अंधेरे में भटकने वाले भी पुण्य नूर होते हैं। तेरे दर की यह खाक भी अक्सीर है मेरे सतगुर, तेरे हाथों में तो पत्थर भी कोही नूर होते हैं। तेरे हाथों में तो पत्थर भी कोही नूर होते हैं। कचो कंचन भयो शब्द गुर श्रवणै सुनियो, बिकते अमृत होयो नाम सतगुरु मुख भणियो। लोयो होयो लाल नदर सतगुर जत धारै, पाहन मानक करे ज्ञान गुर कहो विचारै। काठो श्री खंड सतगुर किए, दुख दरिद्र तिनके गए सतगुर चरण जिन परसिया। से पश प्रेत सुर नर भये, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।